A very good morning class. Again we will start our class with this pledge. So let us take a pledge with me. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, we were doing lesson number 5 and today we will discuss back exercise of this chapter. So we will start with fill-ups. Name of the chapter is the Constitution of India. Chapter number 5, the Constitution of India. Fill in the blanks. First blank. The dash is a set of rules according to which government governs the country. Answer is Constitution. 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 तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल्स का सेट बना हुआ है जिसके साथ गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट को कंट्री को चलाती है, गवर्न करती है. सेकेंड फिलअप. Indian have dash fundamental rights. So Indian have 6 fundamental rights. SIX 6. Third fill-up. India has the world's longest dash. तो इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट. वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट इंडिया का क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. सो आंसर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. Fourth fill-up. The Constitution of India was framed by the dash under the leadership of dash. तो Constitution of India framed किया under the Constituent Assembly. किसने framed किया? Constituent Assembly ने. ये कुछ members की assembly बनी थी जिसने Constitution को frame किया. So answer is Constituent Assembly. अंडर द लीडरशिप ऑफ किसकी लीडरशिप में? BR अम्बेडकर. AMBEDKAR. आंसर BR अम्बेडकर. नेक्स्ट लास्ट फिलअप. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था वो कब इफेक्ट में आया, कब स्टार्ट हुआ? इट इज़ ऑन 26 जनवरी 1950. दैट्स वाई वी आर सेलिब्रेटिंग 26th January as a Republic Day in each year. So next we have a true false. The Constitution of India was drafted by the Constituent Assembly. Yes, it's a true. We have already discussed in the fill-ups. Secular means that all religions are treated with equal respect in India. Secular का means क्या है कि इंडिया में सारे religions को equal respect दी जाती है. So it's a true. Third, true or false. We have 8 fundamental rights. No, we have already discussed in fill-ups. We have only 6 fundamental rights. So it's a false. Fourth, true false. The Constitution states only 4 rights but not our duties. कि Constitution हमें सिर्फ rights देता है, कोई duties नहीं देता. No, it's a false. Because Constitution states duties also. Next, fifth and last true false. The directive principles of state policy in the Constitution are to be followed by the people of India to serve the government. It's a false. Because जो directive principles of state policy के है वो गवर्नमेंट को सर्व करने के लिए नहीं बने हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. दीज आर फॉर द पीपल्स, फॉर द फ्रीडम ऑफ पीपल्स के फ्रीडम के लिए बने हुए, गवर्नमेंट की सर्विस के लिए नहीं बने. सो इट्स फॉल्स. नाउ कम टू द आंसर्स. आंसर द क्वेश्चंस इन फ्यू वर्ड्स. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट आंसर इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? द रूल बुक ऑफ अ कंट्री थ्रू विच इट इज गवर्नड. तो रूल बुक, जो रूल्स की एक बुक बनी हुई है जिसके द्वारा हमारी जो कंट्री है वो चलती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट एनी 2 fundamental
rights given to us by the Indian Constitution? Answer is right to equality. Number 2, right to freedom. These are the two fundamental rights given by us by the Indian Constitution. Third question, what is the main objective of directive principles of the state policy, which we have already discussed in the true false. The main objectives of directive principles of state policy is to lay down certain guidelines for the government. तो गवर्नमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है कि वो इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो सिटीज़न हैं, उनके वेलफेयर को इंश्योर करें, उनकी जो फ्रीडम है, उनके जो राइट्स है वो एक्सप्लॉइट ना हो. नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ. राइट अ नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक ऑफ अ कंट्री थ्रू विच इट इज़ गवर्नड. It was adopted on 26 November 1949 and it was enforced on 26 January 1950. तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स कौन से मिले हैं? फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी. ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. कि सारे जो सिटीजन्स हैं वो कानून के सामने समान होंगे, कोई एज के अकॉर्डिंग या कास्ट के अकॉर्डिंग बड़ा छोटा नहीं होगा. राइट टू फ्रीडम. द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ट्रैवल एंड चूज एनी प्रोफेशन टू अर्न अ लिविंग. तो सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को ये राइट है, फ्रीडम है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं. कोई टीचर बनना है, टीचर बन सकता है, डॉक्टर को जो भी उन्हें पसंद है वही प्रोफेशन वो ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. नो पर्सन कैन बी एक्सप्लॉयटेड और मेड टू वर्क विदाउट पे. तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, लोगों को जो वर्क करेंगे एज पर वर्क में पे मिलेगी. नेक्स्ट, फोर्थ राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? कि कोई भी सिटीजन कोई भी धर्म को अडॉप्ट कर सकता है. नेक्स्ट है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम. वी कैन डेवलप एंड प्रिजर्व अ कल्चर और लैंग्वेज. तो हम अपने कल्चर को डेवलप कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं और उसके लिए कोई भी काम करना चाहे वो कर सकते हैं. नेक्स्ट, सिक्स्थ राइट, दैट्स अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. Right to constitutional remedies. It allows every citizen to go to court if any of their fundamental rights are being denied to them. अगर कोई इंडियन सिटीजन्स का कोई भी फंडामेंटल राइट उससे छीना जाता है तो वो कोर्ट के आगे कोर्ट के आगे अपील कर सकते हैं, केस कर सकते हैं. नेक्स्ट, वी हैव अ मेंशन एनी 4 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. So, to honor the national flag and national anthem, to promote harmony and sense of brotherhood among the citizens, to take care of public property, parents and guardians must educate their children and send them to school. तो क्या है कि हमने ये हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमने रिस्पेक्ट करनी है अपने फ्लैग की और नेशनल एंथम की. हमने ब्रदरहुड इंक्रीज़ करनी है सिटीजन्स के बीच. हमने जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है इंडिया की, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, उसकी केयर करनी है. और पेरेंट्स की ये फंडामेंटल ड्यूटी है और पेरेंट्स के गार्डियंस की वो एजुकेट करें, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजें. तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रीएम्बल. व्हाट इज़ प्रीएम्बल? तो प्रीएम्बल क्या है? द प्रीएम्बल इज़ द इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल क्या है? इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की. तो आवर कंटेंट फॉर इनफ फॉर टुडे. सो विद दिस गुड बाय टू ऑल ऑफ यू.